Yes, students. What we discussed in the last lecture? So GST filing return. What? GST filing. GST? Return filing. Yeah, I think in the last lecture we had discussed about GST council. Is it right? Yes, sir. GST number कैसा registration होता है, registration कैसे करते हैं, that process also we have seen. Then various GST codes and which are the authorities which will give us GST codes. Then GSTN network देखा है. उसके बाद filing of returns ये भी हम लोगों ने देखा है. Then benefits of GST, that also we have studied. Then registration process we have studied. Okay. Then what are the documents required for the GST? Registration for individual, for company, for firm, that also we have discussed. Then GST registration online kaise karte hai, that also we have studied. Getting this? So this was something about last lectures overview. और कौन से प्रोडक्ट्स है, उसका कैपेसिटी कितना चाहिए और उसका रेट्स क्या है जीएसटी के, दैट आल्सो वी हैड स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर. अभी क्या देखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन earlier taxes and GST taxes. Just look towards this slide. You can see this slide now. Yes, sir. Okay. Now look at first towards the left side, left hand side. One tax is there in one container I have shown. So earlier tax system consists of service tax, VAT, central sales tax, entry tax, and excise taxes. Means what multiple of taxes were there, and हर एक का as a manufacturer, as a service provider, as a customer, sorry, as not as a customer, as a retailer, as or as a wholesaler distributor, I have to follow so many rules and regulations. I have to do the separate registration for separate tax. Getting this? So for example, service tax, VAT, entry tax, excise duty, सबका registration process अलग था, रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस अलग था, रिफंड का प्रोसेस फाइलिंग प्रोसेस अलग थे, एंड रूल्स एंड एक्ट वेयर डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी टैक्स. Getting this? Look at the first container. It consists of that tax consists of service tax, VAT, CST, entry tax, and excise. So excise was 12.5%, VAT was around 14.5%, service tax was 1%, entry tax was 2%, and central sales tax was 2%. Okay, so if I combine all the taxes which are beared or which are imposed on the customer को कितना tax payment करना पड़ता था, that is around 32%. Because indirect tax is this tax, GST is nothing but indirect tax. Being an indirect tax, a manufacturer was shifting the burden of this tax towards the distributor was shifting this burden towards the wholesaler was shifting burdens towards retailer, and retailer was shifting this burden towards the ultimate consumer. Means what? Customer was the person who was paying entire tax, and how much tax he was supposed to pay? Around 32%. For example, if I purchase the goods of rupees 100, whose cost of production is 100 rupees, so by making the addition of 32% into 100, so total value of that sale was about 132 rupees to the end user. But due to the entry of taxes, what happened? Our upper limit of GST is 28%. उसके आगे GST tax ही नहीं, कोई product के ऊपर नहीं है GST. Those goods and services which comes under the umbrella of GST, highest tax rate is 28%. So here, how much burden we are shifting towards consumer due to entry of GST? Only 28%, highest up to 28%. And highest kitna jata tha in earlier taxes? Up to 32%. Means what? Here, why it was there? Because there was certain taxes on tax. Tax का जो टैक्स अर्लियर सप्लायर ने पे किया रहेगा उसके ऊपर वंस अगेन टैक्स वाज कैलकुलेटेड. दैट्स व्हाई क्या होता था, कैस्केडिंग इफेक्ट था वहां पे. कैस्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स एंड टैक्स. इसलिए क्या हो रहा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ दैट फिनिश गुड वाज इंक्रीजिंग एवरी टाइम. Cost of that finished good was increasing every time, and that was shifted
towards the consumer. That was the overall incidence of the tax before GST and after GST. Okay, तो इससे क्या हुआ, जीएसटी एंट्री करने के बाद क्या हुआ, टैक्स रेट कम हो गया क्योंकि क्या हो गया, इसका जो ये था डबल टैक्सेशन इफेक्ट हम लोगों ने डिमोलिश कर दिया। तो लुक एट द सर्विस टैक्स, अभी हम लोगों ने जो देखा तो अर्लियर टैक्स था, अब सर्विस टैक्स में क्या चेंज होता था, देखिए। So I was supposed to pay service tax about rupees 10% and VAT around 3%. So 3 plus 10 years, sorry, 1 minute. So 100 rupees, 97 rupees was the price of your manufacturing cost of your product, in which you are adding value added tax of rupees 3%. So it became 100%, and again 15% of service tax I need to pay. Okay, so 15% of service tax and 3% of VAT I need to pay. So it was 15 plus 3 is equal to 18%. Getting this? So automatically the value of product is increasing. So cost of production was increasing. Now after entry of GST हम लोगों ने क्या किया, सर्विस टैक्स के ऊपर हाईएस्ट सर्विस टैक्स है 18%. Means what, overall incidence in case of service tax remain same due to entry of this GST. But formalities which I have to do, the formalities which I, being a manufacturer, being a service provider, being a distributor, being a wholesaler, retailer, मेरा tension कम हो गया. One time is the tax which I have to pay. One time there will be a refund. One time there will be the returns. Okay, so this is the benefit of GST to the end user. Then payment, हम लोगों ने शायद ही देखा था क्या, payment of the service taxes, cross utilization of GST credit between CGST and IGST, between SGST, ETGST and IGST is utilized. अभी उसका क्रॉस यूटिलाइजेशन इज जीएसटी क्रेडिट, यानी जीएसटी इनपुट क्रेडिट. तो पहले ये पेमेंट थोड़ा बाद में देखते हैं, उसका पहला इसका इनपुट क्रेडिट समझ लेते हैं. I hope we have studied this diagram before also. Just go through this diagram, then we will discuss. But first try to understand the value, then we will discuss, and then we will discuss about the input tax credit क्या होता है. Yes, should we start now? Hello, have you gone Yes, through this? Now see here, input tax credit किसको बोलते हैं? Let us first understand this process. So this being a manufacturer, being a service provider, तो अगर रॉ मटेरियल से जब फिनिश प्रोडक्ट्स बनता है और फिनिश प्रोडक्ट जब कस्टमर के पास जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी स्टेजेस. सो देयर आर वेरियस स्टेजेस which will be arrived there. So first is the manufacturer. Manufacturer is the person who convert raw material into finished goods. उसके बाद वो प्रोडक्ट किसके पास जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटर के पास बाद होलसेलर के पास जाएगा. ओके, और होलसेलर के बाद रिटेलर के पास जाएगा, और रिटेलर के बाद यहाँ पे कंज्यूमर को बाद में लास्ट को मिलेगा. दिस इज द चेन ऑफ द मार्केट. अभी देखिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इनपुट क्रेडिट किसको बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरर इज परचेसिंग रॉ मटेरियल. Manufacturer is purchasing raw material, or purchase cost of his raw material is some around, for example, 1000 rupees. Then by making some of the value addition and by adding his profit, he will sell this product. The same product, एक मैन्युफैक्चरर ने एक रॉ मटेरियल 1000 रुपीज को लिया है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया है, और उसके प्रोसेस में
प्रोसेस करने के बाद उसने खुद का मार्जिन ऐड करके he has decided final price of the is 1200. Getting this? Now, so this is the sale value on which this manufacturer has to pay tax to the government. Okay, he has to pay CGST as well as SGST because manufacturer is there in our manufacturer is in our own state, so that on the basis of this sale value, suppose he has to pay 20% of tax rate. अगर उसको जीएसटी कितना भरना है, टोटल सीजीएसटी और एसजीएसटी कंबाइन होके 20% भरना है, तो उसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 240 रुपया. ओके, सो जब इनवॉइस बनेगा मेरा, तो इनवॉइस कितने अमाउंट का बनेगा? 1200 प्लस 240, इट विल बी 14,000 एंड 1440 रुपीज का इनवॉइस बनेगा. आउट ऑफ दिस 1440 रुपीज, 1200 is the actual sale value and 240 rupees is my, what is my, it is the tax which I have paid. Getting this? Now next what will happen, the same amount or same sale value, same finished good is transferred towards the wholesaler at the same amount. वही sale value को wholesaler के पास जाएगा. The goods, that good will be sent towards the wholesaler. तो wholesaler क्या करेगा? He will add his profit and he will sell this product at rupees 1,500. At the time of selling this product at rupees 1,500, again he has to do the tax calculation. He will charge, कितना tax लगाएगा? 20% of your sale value. So 20% of sale value becomes 300. So 1,500 and 300 becomes 1,800 rupees. Is the sale value towards the sale towards the wholesaler. This 1,800 consists of sale value of 1,500 and tax of 1,800. Sorry, 300. Then the same amount, the same product is delivered towards the retailer for selling to the consumer. Then 1,800 is the purchase value to the retailer. Then he will add his own margin about around 200 and he will sell this product into the customer at rupees. और retailer क्या करेगा? उसका price decide करेगा. So whenever is the original sale value of this product is 200 and again retailer will charge 20% of GST. Let us say 20% नहीं है, लेकिन for our understanding we have taken 20%. तो 20% में से 10% कहाँ पे जाएगा? For example 10% जाएगा CGST और 10% जाएगा SGST. अगर ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन रहेगा तो 20% डायरेक्टली गो टू द IGST. समझ में आ रहा है कंसेप्ट? एक तो IGST रहेगा या आपका CGST plus SGST रहेगा. Now sale value of original cost of my sale towards the retailer is 2,000, in which I have charged rate of around 400. That is 20% of 2,000 is equal to 400. So total sale value became 2,400 and the consumer will purchase this product at rupees 2,400. ये consumer को कितना product का cost होगा? 2,400. Now whatever tax manufacturer has paid, wholesaler has paid and retailer has paid, this entire tax burden we have bombarded on our customer. कितना total tax गया है? 400 rupees total tax गया है during entire process. ये 400 rupees tax किसने भरा है? Consumer ने भरा है. Getting this? This 400 rupees tax is paid by the consumer towards the retailer. तो बाकी ये 400 रुपया कौन कलेक्ट करेगा? अभी कंज्यूमर से सारा टैक्स यहाँ पे रिटेलर खरीदी करेगा, रिटेलर कलेक्ट करेगा. Getting this? Now he will collect the tax of rupees 400. But what will happen actually? Just look at. Now look at the actual tax. ये लास्ट वाला कॉलम पे ध्यान दीजिए. अभी यहाँ पे ये जो लास्ट वाला कॉलम यहाँ पे मैंने बनाया ना, this is something about input tax credit.
तो एक्चुअल टैक्स किसने कितना कितना भरा है देखिए, एक्चुअल टैक्स पेड बाय द दिस मैन्युफैक्चरर इज 240 रुपीज, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट पर्सन हु हैव स्टार्टेड द मैन्युफैक्चरिंग, तो उसने ही उतना भरा है। गेटिंग दिस, आफ्टर दैट जस्ट लुक एट द रिटेलर। नो रिटेलर का टोटल, रिटेलर ने कितना टैक्स लायबिलिटी पे करा है, दैट इज 400। So retailer's liability is 400. He has to pay tax of rupees 400. But what will happen? Out of this 400 rupees, 300 rupees is paid by the wholesaler. तो 400 रुपए में से 300 रुपए ऑलरेडी अर्लियर स्टेज में भरे हुए हैं। इसका मतलब रिटेलर ने कितना अमाउंट भरना है, सिर्फ 100 rupees. The amount which he is not supposed to pay, because this amount is already paid here at the earlier stage. समझ में आ रहा है? So total tax liability towards retailer is 400 rupees, but he is only paying 300. He is paying only 100 rupees, because out of this 400 rupees, the tax which is already paid at the earlier stage, he will get the input credit. उसको क्या मिलेगा, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। सो उसको क्या करना है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द टैक्स, उसका टैक्स लायबिलिटी कितना दिखेगा वहां पे, 400 में से 300 ऑटोमेटिकली वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नेम ऑफ योर सप्लायर और नेम ऑफ योर होलसेलर, एंड द क्रेडिट ऑफ इनपुट क्रेडिट ऑफ 300 will be available there. Just you have to select this, and by selecting this 300 rupees, then your total tax liability 400 minus 300 is equal to ultimate tax liability will be rupees 100. तो ये जो यहाँ पे 300 का मुझे एक्सक्यूज मिला है, क्यों एक्सक्यूज मिला है, that 300 rupees tax is paid by somebody else in the earlier stage. That's why I will get the excuse of this 300 rupees, and that 300 rupees is called as an input tax credit. So from wholesaler, who retailer got the input tax credit of rupees 300, means what, there is no need to pay this 300 rupees which are already paid at the earlier stage. So this is something about input tax credit in between wholesaler and retailer. अभी wholesaler के पास जाओ, उसमें कितना है देखिए, total tax liability of wholesaler is 300 rupees, लेकिन जब वो टैक्स पेमेंट करने के लिए जाएगा, उस टाइम उसको क्या आएगा, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट 240 वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने जिधर से माल लिया है ना, उसने ऑलरेडी टैक्स पे किया है। ये 200.40 किधर से आया, ये मैन्युफैक्चरर ने भरा हुआ टैक्स। द टैक्स व्हिच इज पेड एट द अर्लियर स्टेज, दैट अमाउंट वी कैन गेट एन एक्सक्यूज, or it is called as a input tax credit. So my actual tax liability becomes 300 minus 240 is equal to rupees 40. तो होलसेलर एक्चुअल में कितना टैक्स पेमेंट करेगा, 40 रुपीज। रिटेलर कितना पेमेंट करेगा, 100 रुपीज। 100 प्लस 40 कितना हो गया, 140 रुपीज। 140 सॉरी यहाँ पे 60 रुपीज आना चाहिए। 300 माइनस 240 इज इक्वल टू यहाँ पे 60 रुपीज होना चाहिए। तो 60 प्लस 100 इज इक्वल टू 160 हुआ, और उसके बाद मैन्युफैक्चरर ने पे किया हुआ टैक्स कितना, 240 प्लस 160 इक्वल टू 400। तो इतना अल्टीमेट हम लोगों ने चार्ज किया। मींस लुक, ड्यूरिंग दिस एंटायर सिस्टम डबल टैक्सेशन किसी ने भी पेमेंट नहीं किया है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस जीएसटी। सो कैस्केडिंग इफेक्ट हम लोगों ने निकाल दिया है। सो जो हम लोगों को अर्लियर स्टेज से जो मुझे एक्सक्यूज मिलता है, टैक्स में जो छूट मिलती है, उसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जितना भी मेरा लाइन बड़ी रहेगी, हर टाइम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, एंड दिस एंटायर टैक्स विल बी कलेक्टेड बाय द कंज्यूमर। नाउ यू टेल मी, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट विथ रिस्पेक्ट टू दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट? कैसे सिस्टम वेरी होता है, कैसे ट्रांसफर होती है, इसके बारे में? टेल मी फास्ट, डोंट वेस्ट आवर टाइम। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यस बोलिए, नहीं है तो नो बोलिए, हम लोग आगे जाएंगे ना। नो सर। नो सर।
एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? समझ में आ गया इनपुट टैक्स क्रेडिट Yes, sir. कैसा मिलता है? ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जीएसटी का बेनिफिट है। इसमें जीएसटी का बेनिफिट क्या है देखिए, अगर मैन्युफैक्चरर ने रिटर्न फाइल करते समय अगर होलसेलर का नाम नहीं लिखा या गलत डाला तो वो क्या करेगा, एरर दिखाएगा। मीन्स व्हाट, इफ मैन्युफैक्चरर हैज टाइप्ड रॉन्ग नेम ऑफ होलसेलर एंड जब होलसेलर क्रेडिट लेने के लिए जाएगा दैट टाइम मैन्युफैक्चरर का नाम वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो एट दैट टाइम होलसेलर कैन नॉट गेट दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? इसलिए अगर दोनों पार्टी वेरी क्लियर है, मैन्युफैक्चरर एज वेल एज रिटेलर, दोनों में से किसी एक ने अगर गलती की तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट में गलती हो जाएगा। मीन्स व्हाट, दिस सॉफ्टवेयर विल नॉट एक्सेप्ट दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसलिए मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर का नाम लिखते समय, होलसेलर का नाम लिखते समय ऑटोमेटिकली अगर ठीक से एक बार ही एंट्री करनी है। ओके, अगर यहाँ पे कुछ स्पेलिंग एरर हो गया या मिस्टेक अगर मैंने कुछ किया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस वी रिजॉल्व द एरर। ओके, सो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, कौन बताएगा मुझे अभी? व्हाट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट? यस, बोलो जल्दी, आज हमको ये चैप्टर यूनिट नंबर 2 फिनिश करना है। Just try. It may be wrong, but I should also understand whether you are getting or not. How many students are there? 11 students are there. Who will tell? Rupali, Godke. Can you tell me what I have earlier just explained to you? Pratiksha. Did you just tell me, did you understand or not? Just unmute your mics. I just wanted to know how many students are listening me. Just unmute your mics. Yes, sir. Yes, sir. Please unmute your mics. Yes. Yes, sir. You are getting now what I am telling you? Yes, sir. Yes. Okay, okay. Now next is something about payment. तो पेमेंट हम लोग जब पेमेंट करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, तब हमको क्या मिलता है? We have to make the payment by deducting the input tax credit. जो अभी हम लोग को इनपुट टैक्स क्रेडिट देखा ना, वो डिडक्ट करके बचा हुआ अमाउंट हमको क्या करना है? पेमेंट करना है। गेटिंग दिस? अभी जैसे मैंने दिखाया था कैलकुलेशन करके, कहाँ गया वो चार्ट? इधर है ये वाला। तो मेरा टैक्स लायबिलिटी मैंने जस्ट हियर वंस अगेन आई विल टेल यू। तो इनका टैक्स लायबिलिटी कितना है मैन्युफैक्चरर का? मैन्युफैक्चरर 240 पेमेंट करेगा। होलसेलर विल मेक द पेमेंट ऑफ ओनली ₹40, सॉरी 60 आएगा, ये कैलकुलेशन गलत है मेरा। सो ये 60 रहेगा and retailer will make the payment of ₹100. Getting this? And this whatever amount contributed in the form of tax by wholesaler, manufacturer, retailer, and this will be shifted towards the consumer or end user of ₹400. ये 400 कौन पेमेंट करेगा? रिकवरी किससे किया जाएगा? कंज्यूमर से किया जाएगा। अभी जब इनपुट टैक्स पेमेंट करने का, जब टैक्स का रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस रहेगा, टैक्स पेमेंट करने का प्रोसेस रहेगा, दैट टाइम यू विल गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ₹, दिस मच। ये जो है ना, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, इधर भी आपको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर ये मैन्युफैक्चरर ने अगर कोई सप्लायर से माल लिया रहेगा तो ये 240 का उसको भी मिलेगा।
गेटिंग दिस? तो अर्लियर स्टेज से माल लिया रहेगा तो इधर से उसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। गेटिंग दिस? तो इनडायरेक्टली व्हाट वी आर डूइंग, इनडायरेक्टली वी आर शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द कंज्यूमर्स अगेन एंड अगेन। अभी देखिए हाँ, नाउ पेमेंट करते समय मुझे क्या करना है, आई हैव टू टेक एवरी टाइम, आई हैव टू टेक द जीएसटी क्रेडिट और इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट को दूसरा वर्ड है जीएसटी क्रेडिट। तो जीएसटी क्रेडिट किधर से मिलता है? इन बिटवीन सीजीएसटी एंड आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी टेकन। अगर मेरा रॉ मटेरियल दूसरे एक राज्य से लेके दूसरे राज्य को ट्रांसफर हो रहा है, एट दैट टाइम आई हैव सपोज टू पे आईजीएसटी। समझ में आ रहा है? अगर मेरा आईजीएसटी पे हो रहा है तो इनपुट टैक्स भी मुझे आईजीएसटी का भी मिलेगा ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मेरा आईजीएसटी अगर स्टेट अगर चेंज हो रहा है, एट दैट टाइम आई हैव टू पे आईजीएसटी। अगर विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो दैट टाइम आई हैव टू पे सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी। बट अक्रॉस द स्टेट अगर ट्रांजैक्शन आपका होता है, एट दैट टाइम यू हैव टू पे आईजीएसटी। गेटिंग दिस? हियर क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी, यानी इनपुट एंड आउटपुट कैसे मैच करते हैं देखिए। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी क्रेडिट बिटवीन सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीएसजी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी का क्रॉस यूटिलाइजेशन हो जाएगा। मींस व्हाट? इनपुट क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, राइट? आउटपुट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। इन द सेम मैनर, in between SGST oblique UTGST and IGST is allowed. Input credit of CGST, input credit of CGST, input credit of CGST and IGST is utilized in between SGST, UTGST and IGST. Okay, SGST यानी state GST, UTGST is the unit क्या बोलते हैं उसको, यूनियन टेरिटरीज, जीएसटी एंड आईजीएसटी। गेटिंग दिस? देन प्रोविजन ऑफ टीडीएस ऑन सर्टेन एंटिटीज। कुछ टीडीएस, कुछ एक्टिविटीज, कुछ कंपनीज रहेगी, कुछ ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे, उसके ऊपर मुझे टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। व्हेनेवर यू आर डूइंग द ट्रांजैक्शन, एट दैट टाइम during that transaction some tax will be deducted. So again it depends upon on certain operation, certain products. Then e-commerce operators, e-commerce operator यानी कौन से ऑपरेटर्स? जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको बोलते हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स। फैसिलिटिंग सप्लाईज बाय अदर सप्लायर्स, किसी और सप्लायर से अगर आप सप्लाई करते हो माल, हाउ टू कलेक्ट टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। किससे? अदर सप्लायर से, जो सप्लायर के साथ आपका टाई अप है और उसके साथ अगर हम लोग ऑनलाइन माल बेचते हो तो उनको, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्टर किया हुआ ई कॉमर्स ऑपरेटर रहेगा, उसको सप्लायर से टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड आउट ऑफ द पेमेंट टू बी मेड टू द सच सप्लायर। अगर उसको सप्लायर को पेमेंट करते समय टैक्स कलेक्ट करके उसको पेमेंट करना है। ओके, नाउ रिफंड क्या होता है देखिए। रिफंड का प्रोसेस, टाइम लिमिट फॉर रिफंड ऑफ टैक्स और एनी इंटरेस्ट इज 2 years। 2 साल के अंदर ही आपको रिफंड का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव जनरेटेड द इनकम इन द ईयर 2018, दैट टाइम अप टू 2020 यू कैन गो फॉर रिफंड ऑफ द टैक्सेस। अगर 21 में अगर आप लोग गए तो दैट विल बी नॉट अलाउड। Then refund of accumulated input tax credit is allowed in case of exports. Accumulated income tax credit export के बारे में आपको income tax credit का भी refund होगा। Then refund to be granted within 60 days from the date of receipt of complete application। जब आपका application जाएगा refund का, submit हो जाएगा online में, तो within 60 days you will get the amount of refund। अगर 60 दिन में आपको रिफंड पैसा नहीं मिला तो जितने भी ज्यादा दिन हो जाएंगे उसके ऊपर आपको डेली बेसिस पे इंटरेस्ट जमा हो जाएगा आपके रिफंड के ऊपर। ओके, देन रिफंड क्लेम अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस
टू बी फाइल्ड ऑनलाइन, रिफंड क्लेम कैसे करना है, नॉट इन फिजिकल मोड, यू हैव टू गो ऑनलाइन मोड विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेरेंस विद टैक्स अथॉरिटी, किसी भी टैक्स अथॉरिटी के पास जाके नहीं करना है. You have to just visit to the GSTN network and where you can apply for the refund of the taxes. And this tax refunded will be directly credited to the customers or it will be directly credited to the our banks. Okay, ये refund का process है. अभी आप लोगों ने जो input tax credit देखा ना, इसका process देखिए. ITC is nothing but input tax credit is available in respect of taxes paid to on any supply of goods or services used in the business purpose. जो supplier goods and services जब हम लोग supply करेंगे, at that time whatever tax we are paying, we will get its a credit, and that credit is nothing but input tax credit. Okay, ITC of a tax paid on the goods and services used for making the taxable supply by the taxable person allows subject to following conditions. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मुझे मिलेगा, जीएसटी का टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा. सो आई शुड हैव टू पजेस द इनवॉइस, इनवॉइस का कॉपी मेरे पास होना चाहिए, इनवॉइस का प्रूफ मेरे पास में होना चाहिए. दैट इनवॉइस प्रूफ आई हैव टू अपलोड. देन रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसका डिलीवरी रिपोर्ट जो रहेगा वो भी मुझे अपलोड करना है. इनवॉइस यानी इट इज द स्टेटमेंट और इट इज द बिल ऑफ योर प्रोडक्ट, वो बिल आपके पास होना चाहिए. गुड्स डिलीवरी हुआ उसका भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए. एंड एक्चुअली टैक्स एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर टू द गवर्नमेंट. तो आपने सप्लायर, आपके सप्लायर ने अगर अर्लियर स्टेज पे कुछ टैक्स पे किया रहेगा उसका भी प्रूफ आपके पास रहेगा. अगर ये तीनों चार्जेस, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होते हैं, अगर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके सप्लायर को अपलोड करना पड़ेगा मेरे नाम से. If we are having this kind of 3 documents, at that time I will get the input tax credit. अगर ये इन तीनों में से एक भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुआ तब वो एरर दिखाएगा, अगर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला तो इसका मतलब मेरे आगे वाला जो मेरा रिटेलर है उसको भी नहीं मिलेगा. Getting this? So this entire process will be error. That's why this should be error free process. That's why supplier ने उसका काम अच्छी तरीके से अपलोड करना है, होलसेलर ने अच्छी तरीके से उसके डॉक्यूमेंट्स करने हैं, रिटेलर ने अच्छी तरीके से उसके डॉक्यूमेंट्स करने पड़ेगा. Then you will get this input tax credit. Otherwise it will show the errors. Until and unless you should not resolve the errors, till that time you will not get this input tax credit. तब तक ये आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पेंडिंग में देखेगा. मींस व्हाट, यू हैव टू पे एंटायर टैक्स. अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, फॉर एग्जांपल मेरा टैक्स लायबिलिटी आया 400 रुपीज का, and I'm not able to take the input tax credit of 300 rupees which is paid in the earlier stage, तो मुझे कितना टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, एंटायर 400 rupees I have to pay. Getting this till that time, otherwise I have to resolve this issue immediately. Okay, the next is proportionate credits allowed in case of inputs, services and capital goods are partly used for business and partly used for non-business purpose. तो अगर नॉन बिजनेस पर्पस जो गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम लोग बिजनेस के लिए भी कुछ यूज करते हैं और मेरे पर्सनल यूज के लिए भी अगर हम लोग यूज करते हैं तो मुझे उतना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा, proportionate benefit मुझे मिलेगा, because some goods are using for business activity and some goods are using for private purpose, non business activity. So जो non business activity के लिए यूज किया हुआ goods and services रहेगा उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा. Okay, the proportionate credits allowed in case of inputs, services and capital goods are used for taxable including zero rated यानी जिसके ऊपर जीरो टैक्स है उसका भी क्रेडिट मुझे यहाँ पे मिलेगा और उसका क्रेडिट जीरो ही रहेगा. ITC cannot be availed after filing of return. एक बार रिटर्न फाइल करने के बाद आपको बाद में नहीं मिलेगा. Once you have paid this, then you have to go for refund. Try to understand. तो रिफंड पेमेंट फाइलिंग, रिटर्न फाइल करने के पहले ही आपको वो ITC लेना पड़ेगा. जो कुछ एरर्स रहेंगे आपके एंड में और आपके सप्लायर के एंड में, you have to find it. Okay. ITC cannot be availed after the filing of return of the month of the September
ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंसिंग एनुअल रिटर्न। एक बार ये सबमिट होने के बाद आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ITC is available only provisional basis for the period of 2 months until payment of tax and filing of valid returns at the supplier. तो ITC क्या होता है? प्रोविजनल बेसिस पे मिलता है जब तक 2 महीने का क्रेडिट पीरियड होता है। ITR 1, ITR 3, ITR 2 सबमिट करने के लिए हर एक डिपेंड करता है। जब तक वो फाइनल रिटर्न सबमिट नहीं करता तब तक दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोविजनल ITC। मैचिंग ऑफ सप्लायर्स एंड रिसिपेंट्स इनवॉइस डिटेल्स। तो क्या होना चाहिए? सप्लायर के और रिसिपेंट के इनवॉइस एक दूसरे को मैच होने चाहिए, तभी आपको आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा। बिकॉज दिस इज द सॉफ्टवेयर, इट विल जस्ट रिफ्लेक्ट योर एरर्स, इट विल आल्सो फाइंड आउट योर एरर्स। सो आईटीसी टू बी कंफर्म ओनली आफ्टर मैचिंग सच इंफॉर्मेशन। अगर सप्लायर का इंफॉर्मेशन, मेरा इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर का एक इनवॉइस है, उसमें क्या बनाया है कि 1000 यूनिट्स सेल टू द एबीसी कंपनी, गेटिंग दिस। तो उसने वो इनवॉइस उसका अपलोड किया है मेरे सप्लायर ने। तो एज अ रिटेलर और एज अ मैन्युफैक्चरर मुझे भी मेरा इनवॉइस अपलोड करना पड़ेगा कि मैंने सो एंड सो सप्लायर से वो 1000 यूनिट्स परचेस किए हैं। अगर मेरा इनवॉइस और मेरे सप्लायर का इनवॉइस जब मैच होता है तभी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर वो मैच नहीं होता है, वैल्यू में भी कुछ डिफरेंस है, क्वांटिटी में अगर डिफरेंस बन गया, तो दिस कंप्यूटर विल नॉट एक्सेप्ट दिस। So this will show the errors in the input tax credit. So ITC to be reversed in case of mismatch. तो अगर ये मिसमैच हो गया तो क्या होता है? ITC रिवर्स होता है। क्लियर एवरीबॉडी? इनपुट टैक्स क्रेडिट, टेल मी फास्ट। Yes, sir. ओके, अभी देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, GSTN नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है वहां पे जाके हम लोगों को सारा प्रोसेस करना है। दिस इज द फैसिलिटी गिवन बाय दिस Infosys company. This is the software you can access, and that software is called as a GST network, GSTN, goods and service tax network. Okay, and this is just assumed as a one company. जो GSTN जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क है ना, उसको क्या किया है, एज पर कंपनीज एक्ट 56 एंड अंडर 25th सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 56, जीएसटी नेटवर्क को एक कंपनी कहा गया है। एंड दिस कंपनी वुड प्रोवाइड 3 फ्रंट एंड सर्विसेज टू द टैक्स पेयर। तो फ्रंट एंड सर्विसेज कौन से प्रोवाइड करती है? दिस जीएसटी नेटवर्क रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड रिटर्न प्रोसेस का सब कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गेटिंग दिस? देन GSTN network would be developing back-end IT modules for 27 स्टेट। हर एक स्टेट का GSTN नेटवर्क का मॉड्यूल अलग अलग है। एंड 7 जितने भी हमारे ये है यूनियन टेरिटरीज, तो उनके लिए भी अलग अलग मॉड्यूल बनाए, सेपरेट मॉड्यूल फॉर सेपरेट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। It is prepared under this GSTN network. Getting this? So GSTN has selected more than 34 IT, ITES and financial technological companies. तो GSTN network ने क्या किया है? 34 IT companies, IT enabled companies and financial technology companies had chosen, and these companies are called as a GST Suvidha providers, which will help us to make the smooth function of these activities. And Infosys company has appointed for this business. So this business is transferred towards the Infosys company. अभी साइलेंट फीचर्स क्या है जीएसटी के? देखिए क्रेडिट ऑफ CGST paid on the input may be used only for paying credit of CGST of output. Try to understand. Credit of CGST paid on the input may be used only for paying CGST on the output. इनपुट का जो CGST किसको जाएगा? सेंट्रल को जाएगा। इनपुट के ऊपर जितना भी महीने टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेरा गया रहेगा, वही आउटपुट का टैक्स पेमेंट करते समय उसी CGST से एडजस्ट करेंगे। गेटिंग दिस?
मीन्स व्हाट, यू हैव टू पे टैक्स ऑन इनपुट एज वेल एज टैक्स ऑन आउटपुट। तो इनपुट का टैक्स जो मेरा गवर्नमेंट के पास गया है, वही टैक्स आउटपुट का टैक्स पेमेंट करते समय वो एडजस्ट करेंगे, एंड रिमेनिंग लायबिलिटी यू हैव टू पे। देन क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी पेड ऑन द इनपुट, इनपुट यानी रॉ मटेरियल परचेस करते समय, may be used only for paying SGST and UTGST at the output. इनपुट यानी माल खरीद ले परचेस करते समय, एंड सोल्ड करते समय अगर मेरे स्टेट से अगर कुछ माल बाहर जा रहा है, एट दैट टाइम दिस इज इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो SGST UTGST input will be adjusted with SGST UTGST output. Getting this? Then credit will be permitted to be utilized in case of following manner. अभी देखिए कैसे एडजस्ट कर सकते, परमिट होता है ITC क्रेडिट। ITC of CGST allowed, input tax credit of CGST is allowed for payment of CGST and IGST in that order. Means input of CGST will be used for payment of CGST and IGST. Then input of SGST is allowed for payment of SGST and IGST. क्योंकि SGST से भी कुछ माल क्या होता है, अगर हम लोग कुछ पेमेंट करते हैं ना, दो टाइप के टैक्सेस मुझे पेमेंट करता है, एक होता है SGST, दूसरा होता है IGST, सॉरी CGST। तो SGST का तो देखिए, एज अ बीइंग अ कंज्यूमर I can send my product within my state as well as across or outside my state. तो आउटसाइड माई स्टेट अगर मैं पेमेंट करूंगा तो IGST पेमेंट करना पड़ेगा, विद इन स्टेट में मुझे पेमेंट करना है तो आई हैव टू पे SGST एज वेल एज IGST। तो उसके हिसाब से वो ITC एडजस्ट करते हैं। देन ITC of UTGST allowed for payment of UTGST and IGST. So ITC is nothing but input tax credit का एडजस्टमेंट ये यहाँ पे दिया है। And ITC of IGST allowed for payment of IGST, CGST, STGST and utility in that order. तो IGST सब जगह पे एडजस्ट हो सकता है आउटपुट के लिए। IGST का पेमेंट आउटपुट का, CGST का, SGST का एंड UTGST का एडजस्ट करेंगे ITC के लिए। Then ITC of CGST, try to understand. ITC of CGST is used, cannot used for payment of SGST and UTGST. ITC of CGST cannot be used for the payment of SGST and UTGST. So these are the silent features of UT. These are the silent features of GST. अभी देखिए, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जो कौन लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। ओके, सो पर्सन्स एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ नॉट लायबल टू टैक्स। अगर मैं जो टैक्स एग्जम्प्टेड गुड्स है, अगर मैं एग्जम्प्टेड गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करता, जीरो रेटेड गुड्स बोलते हैं ना, agricultural goods, for example agricultural goods, if I'm producing agricultural goods, at that time there is no need to do the registration. Getting this? The person engaged exclusively in supplying of goods and services or both are not liable to tax. जो goods and services के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, वही गुड्स अगर हम लोग, वही सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वही गुड्स अगर हम लोग बनाते हैं, तो मुझे टैक्स का रजिस्ट्रेशन करना, GSTN नंबर लेना जरूरी नहीं है। सेकंड, पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जो टैक्स से एग्जम्प्टेड है, 0% टैक्स है, उनको भी टैक्स का GSTN नंबर लेना जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। Any other person as may be notified by the government, अगर गवर्नमेंट ने कुछ बताया रहेगा स्पेसिफिक पर्सन, उसको टैक्स लायबल नहीं है, उसको भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं। जिसको टैक्स लायबिलिटी नहीं बैठती है, उनको जरूरी नहीं है। देन एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, तो एग्रीकल्चरल के लिए कोई भी टैक्स पेमेंट करने का जरूरी नहीं है। उसके बाद जॉब वर्कर यानी जॉब वर्कर इज द पर्सन who get the orders from various companies, and with respect to the orders, for example supplier of Tata Motor Company, तो चैसिस बना के देगा, इंजन का कुछ पार्ट बना के देगा या व्हील्स बना के देगा, दिस इज द सप्लायर, दिस इज नॉट मैन्युफैक्चरर।
तो टाटा मोटर के डिमांड की रिक्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंगली ही इज डूइंग दिस जॉब। अगर टाटा मोटर्स का ऑर्डर नहीं आया तो ही विल नॉट मैन्युफैक्चर, ही विल स्टॉप हिज एक्टिविटी, उसको बोलते हैं जॉब वर्कर। जॉब वर्कर इज द वर्कर हु इज अपॉइंटेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू असिस्ट हिम। ओके, तो जॉब वर्कर कि जिसका टर्नओवर लेस देन 20 lakhs है वो भी एग्जम्प्टेड है, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। एज वेल एज इन केस ऑफ जम्मू कश्मीर 10 लाख का लिमिट है। अगर जॉब वर्कर कोई भी जॉब वर्कर उसका टर्नओवर लेस देन 10 lakhs या लेस देन 20 lakhs रहेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं। बट दिस एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू द ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ अँड सिल्वर स्मिथ आणि काय म्हणतो आपण त्याला, ज्वेलरी के बारे में ये अप्लिकेबल नहीं है। उसके बाद गोल्ड स्मिथ म्हणजेच काय, सोनार म्हणतो की नाही, जो सोन्याची प्रोसेस करणारे लोक, चांदीवरती प्रोसेस करणारे लोक, फॉर दीज पीपल दिस प्रोसेस इज नॉट एप्लीकेबल, उनको जीएसटी से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड, किसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है, हु आर द पर्सन हु आर नॉट लायबल टू रजिस्टर। अभी देखिए डीम्ड रजिस्ट्रेशन, आई थिंक इन द यस्टरडेज लेक्चर आल्सो वी हैव स्टडीड दिस। अभी डीम्ड रजिस्ट्रेशन क्या है, वी हैव टू रजिस्टर, अगर मैं जो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाता हूं, अगर मेरे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज किया रहेगा तो मुझे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अभी डीम्ड रजिस्ट्रेशन यानी क्या है, यू हैव टू सेंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यू हैव टू सेंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अगर विदिन 3 डेज अगर इनकम टैक्स से या जीएसटी से आपको कुछ अगर क्वेरी नहीं आई 3 दिन में, तो समझ लो 3 के दिन के बाद समझ लो कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इट मे बी डिलेड ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ द जीएसटी काउंसिल और जीएसटी नेटवर्क, बट एट दैट टाइम आफ्टर 3 days if you don't get any kind of queries, once you have uploaded your form, once you have filled your form, that time this person will considered as a deemed registration। तो deemed registration आपके पास आ जाएगा, and once you get this deemed registration then you will start your business। तो इसको बोलते हैं deemed registration। ओके, तो deemed registration में क्या है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट अगर 3 दिन में होता है तो दैट टाइम यू विल बी नॉट डीम्ड रजिस्टर। अगर 3 दिन में एप्लीकेशन करने के बाद अगर 3 दिन में आपको कुछ क्वेरी नहीं निकलती है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट का मेल नहीं आता है, दैट टाइम यू विल कंसिडर दैट यू आर डीम्ड रजिस्टर्ड पर्सन, डीम्ड टैक्स पेयर। The next concept is the composition taxpayer. Just go through this slide. I will explain. What is the composition taxpayer? Okay, see what is the composition taxpayer. So composition scheme is the simple and easy scheme under GST for taxpayer। जो छोटे छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं उनको ये झंझट में अगर नहीं पड़ना है, इसका रिटर्न फाइल करना, एप्लीकेशन करना, तो दे विल रजिस्टर फॉर कंपोजिट टैक्स पेयर। सो दीज आर द वेरी स्मॉल टैक्स पेयर, they can get liberty from tedious tax formalities। अगर इससे मुक्तता चाहिए तो वो क्या करेंगे, they will pay fixed rate of turnover, they will pay GST on fixed rate of turnover। मेरा फिक्स टर्नओवर, मेरा टर्नओवर ऊपर जाने दो नीचे जाने दो, मैं 18 lakhs के ऊपर या मैं फॉर एग्जांपल 25 lakhs के ऊपर फिक्स्ड अमाउंट से इनकम टैक्स भरूंगा, मैं इनपुट क्रेडिट ले लूंगा, नहीं कुछ नहीं करूंगा, तो उसको बोलते हैं इनपुट कंपोजिशन टैक्स पेयर। सो दिस स्कीम कैन बी ऑप्टेड बाय द एनी टैक्स पेयर whose turnover is less than 1.5 crores के नीचे है। और उसको कैसे टैक्स पेमेंट करना है, देखिए स्मॉल टैक्स पेयर्स कैन गेट लिबर्टी फ्रॉम tedious GST formalities
and they can pay GST at a fixed rate of turnover. Fixed turnover means what? You are deciding your fixed turnover. Getting this? And you can get sanction about this from income tax department, and it allows a taxpayer to pay a tax at fixed rate specified in the law without allowing credit of taxes paid on input and input services. तो अगर हम लोग फिक्स अमाउंट का टैक्स पे करते हैं, at that time you will not get the input credit. Okay, so this is something about composition taxpayer. Then advantages क्या है देखिए, comfort of compliance, as no detailed accounts and records are not required. तो अगर हम लोग composite tax payment पे registration किया है तो details of our bills, invoices are not required. So here in case of composition taxpayer, what we have to do, details, there is no need to maintain various accounts, various records, various bills, कुछ भी अपलोड करने की आपको जरूरी नहीं है. And it will be simplified quarterly return file करना है at lesser rate, कम से कम रेट से quarterly करना है, monthly आपको नहीं करना है. Higher liquidity as a composition taxpayer is required to pay tax at lower rate as compared to standard rate of GST. यानी 18% से आपको कंपोजिशन टैक्स में पेमेंट में कम रेट से टैक्स भरने का चांस मिल जाएगा. नो इश्यूएंस ऑफ द रेगुलर टैक्स इनवॉइसेस, रेगुलर टैक्स इनवॉइसेस बनाने की आपको जरूरी नहीं है. इन केस ऑफ नील रिटर्न, सेम कैन टू बी फिल्ड बाय द SMS फैसिलिटी. ये बेनिफिट्स है कंपोजिशन टैक्स पेमेंट्स. अभी देखिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड देन वी विल डिस्कस. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन किसको बोलते हैं? Okay, see, casual taxable person is not a regular taxpayer. कभी कभी बिजनेस करता है and he is not fixed about his business. Getting this? He wanted to, for example, one person came from foreign and he wanted to do this business in India for only 2 months, 3 months. तो उसको regular taxpayer का permission नहीं दिया जाएगा, because he will stay within India for only 3 to 4 months. Or for 6 months. At that time, he is not doing continuously his business into India. At that time, he will be considered as a casual taxable person. Casual taxable person यानी क्या है? It is defined in the section 220 or 20 to be a person and person at not registered person. Not registered person के अंडर उसका registration हो जाएगा. Who occasionally undertake transaction involving supply. कभी कभी वो ट्रांजैक्शन करता है, रेगुलर उसका बिजनेस नहीं है. द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड टू द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन. फॉर द रजिस्ट्रेशन, तो एक तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को वो पीरियड मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन में. गेटिंग देयर? और 90 डेज इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. उसको कितने दिन के लिए परमिशन मिलेगा? एक तो स्पेसिफाई किया हुआ डेट और 90 डेज, हाईएस्ट कितना हो जाएगा? 90.
अगर मैंने मेंशन कितने किए, फॉर एग्जांपल 60 डेज के लिए मेरा बिजनेस है और यहाँ पे कितना है 90 डेज है, गेटिंग दिस, तो मुझे अर्लियर जितना रहेगा उतना ही मुझे परमिशन मिलेगा, मैं यानी अर्लियर 90 डेज तक ही मेरा ये रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा, because I am not regular. 90 days is nothing but 3 months ना, whichever is earlier and extendable by a proper officer for further period of maximum 90 days. तो 90 days का होने के बाद अगर उसमें अगर उसका ट्रांजेक्शन और भी कुछ पेंडिंग रहेगा तो another 90 days he will get. So 3 plus 3 6 महीने उसको मिल जाएंगे in case of casual taxable person. He is not regular taxpayer. That's why तो उसके लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का एक आया है कंसेप्ट। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मींस नॉट पर्सन इज नॉट डूइंग दिस बिजनेस फॉर एंटायर 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए वो बिजनेस नहीं कर रहा है, पूरे साल के लिए वो बिजनेस नहीं कर रहा है। इसलिए पहले बीइंग अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, पहले हम लोगों को उनको रजिस्ट्रेशन पीरियड देते हैं 3 महीने का। अगर 3 महीने में उसका नहीं होता है तो विथ परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर ही कैन अप्लाई फॉर नेक्स्ट अनदर 90 डेज। तो अगर इसी टाइप का किसी का रजिस्ट्रेशन होता है नॉन रेसिडेंट पर्सन का, या कुछ ऐसे पर्सन बाहर से इधर आके कुछ बिजनेस करते हैं, उनके लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का यह है। Now the casual taxable person or non-resident taxable person while seeking the registration, जब रजिस्ट्रेशन लेगा वो रजिस्ट्रेशन करेगा, shall make an advance deposit of tax, तो रजिस्ट्रेशन करते ही उसको एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है in an amount equivalent to his tax liability। उसने एस्टिमेट करना चाहिए कि एक अगर 3 महीने में ये मेरे बिजनेस किया तो मुझे कितना टैक्स लाइबिलिटी बैठेगा, उतना टैक्स लाइबिलिटी मैंने पहले ही भरना है गवर्नमेंट को। Getting this, and such deposits shall be credited to the electronic cash ledger of casual taxable person or non-resident person and utilized in the manner provided under the section upon 49 of payment of tax, interest, penalty। जो कुछ करना पड़ेगा वही एडवांस में टैक्स पेमेंट किया हुआ पैसा यूटिलाइजेशन होगा और बचा हुआ पैसा मुझे रिफंड मिलेगा। So this is something about regular casual taxable person. Then reversal of cancellation of registration। रिवर्स रजिस्ट्रेशन अगर मेरा कभी कैंसिल हो गया तो उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं? Just go through this slide. Reversal of cancellation of GST registration. Some of the times income tax department will cancel my GST registration due to penalties, due to not filing of returns on the time. At that time, they will cancel my GST registration. So what you can do, you can make enforce this GST registration. That is something about reversal of cancellation of GST registration. वो कैसे करते हैं देखिए, a taxpayer whose registration is cancelled by the proper officer, taxpayer की जिसका registration cancel किया है can apply for reversal of such cancellation of GST registration by applying GST REG 21 form। GST REG 21 form apply करना है, भरना है। Again it is in the form of online। This application should be filed within 30 days of the receiving notice for the cancellation of GST registration। ये नोटिस आने के बाद गवर्नमेंट से जब नोटिस आ जाएगी कि your registration is going to be cancelled, at that time you can reapply for this। In case of proper officer has cancelled the registration because of, कब कैंसिल करता है? फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। अगर आपने फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स फाइल नहीं किए टाइम पे तो वो कैंसिल हो सकता है। The reversal application in GST REG 21 can be filed only after pending returns। जो जितना भी आपका कुछ पेंडिंग लाइबिलिटीज रहेंगे, इंटरेस्ट रहेगा, पेंडिंग पेनल्टी रहेगा, पेंडिंग रिटर्न्स रहेंगे, जब तक ये पेमेंट आप नहीं करोगे, जब तक ये फाइल नहीं करोगे, तब तक आपका GST registration in force नहीं हो जाएगा। That is something about reversal of cancellation of GST registration। Okay, I think we have finished our time। कितना बाकी है देखते हैं, 2। Okay, you don't have next lecture ना? इसके बाद लेक्चर है क्या आपका? No, sir. No, sir. अभी can we extend for another 5 to 10 minutes?
Yes, sir. Within 5 minutes we will finish this unit. तो रिटर्न्स है क्या है, नॉर्मल रिटर्न्स अगर हम लोगों को फाइल करने हैं तो रिटर्न्स का क्या है, हर एक का रिटर्न्स का डेट है। देखिए जस्ट लुक एट द पीरियोडिसिटी ऑफ रिटर्न्स। जीएसटीआर 1 कब भरना है, 2 कब भरना है, 3 कब भरना है, 4 5 6 7 8 9 तक जीएसटीआर है। जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड, जीएसटीआर को उसको भरना है और कब भरना है। लेट अस सी जीएसटीआर 1 इज फॉर आउटवर्ड सप्लाईज, यानी बाहर का सप्लाई मेड बाय द टैक्स पेयर, टैक्स पेयर ने सप्लाई आउटवर्ड किया है, अदर देन द इनपुट सर्विस, अदर देन द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो दैट इज समथिंग अबाउट आउटपुट सप्लाई का आपको क्या करना है, जीएसटीआर 1 भरना है। ओके, द आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय द टैक्स पेयर मेड बाय द टैक्स पेयर, यानी कौन सा टैक्स पेयर, अदर देन यानी कौन सा टैक्स पेयर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेसिडेंट पर्सन छोड़ के बाकी लोगों के लिए। जीएसटीआर 1 कब फाइल करना है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी इसी महीने का बिजनेस अगर मैंने किया इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी, एट दैट टाइम up to 10th of March I have to file the GSTR 1. Clear about this? And it is on outward of your supply. आपने कितना माल बाहर भेजा, getting this? तो that is something about outward supply. तो outward supply जितना भी आपका रहेगा during 1 month, उसका GSTR 1 10 तारीख तक, अगले महीने की 10 तारीख तक आपको भरना है। So this is outward supply. तो इनवर्ड सप्लाई का क्या करना है, इनवर्ड यानी हम लोग इनवर्ड करेंगे सप्लाई किसी और से, किसी सप्लायर के से। तो जो कुछ हम लोगों ने माल इनवर्ड किया रहेगा, मेरे कंपनी में आया हुआ माल, उसकी भी मुझे एंट्री करना है, क्योंकि वो किसी ने आउटवर्ड किया रहेगा ना। मैं जब इनवर्ड करूंगा इसका मतलब किसी ने आउटवर्ड किया रहेगा माल, इसलिए मुझे उसका भी जीएसटीआर 2 फाइल करना है। और जीएसटीआर 2 कब करना है, 5th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फेब्रुआरी का जितना भी इनवर्ड रहेगा तो उसकी एंट्री मार्च के 5 तारीख के पहले मुझे करनी है। गेटिंग दिस? देन जीएसटीआर 3 क्या है, देखिए इट इज काइंड ऑफ मंथली रिटर्न। और ये मंथली रिटर्न किसको एप्लीकेबल नहीं है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ 10। इनको ये मंथली रिटर्न कंपल्सन नहीं है। कौन भरेगा ये फॉर्म, रेगुलर टैक्स पेयर। उसको जीएसटीआर 3 भरना है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी फेब्रुआरी का जितना भी आपका बिजनेस रहेगा उसका मंथली रिटर्न मार्च के 20 तारीख के पहले जाना चाहिए। हैव एनी डाउट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पीरियोडिसिटी ऑफ रिटर्न्स? समजते का? Yes, sir. जीएसटीआर 1 काय हो, आहे, sir. आउटवर्ड सप्लायचा आहे। जीएसटीआर 2 हा इनवर्ड सप्लायची एंट्री करायची, आणि जीएसटीआर 3 हा तुमचे मंथली रिटर्न जायला पाहिजे। जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाय तुम्हाला 10 तारखेच्या आतमध्ये भरायचा आहे। जीएसटीआर 2 फॉर्म हा 5 तारखेच्या आतमध्ये भरायचा आहे पुढच्या महिन्याच्या, आणि जीएसटीआर 3 हा 20 तारखेच्या आतमध्ये तुम्हाला भरणं कंपल्सरी आहे। जर नाही भरलं तर तुम्हाला फाईन लागेल, तुम्हाला पेनल्टी लागेल, मे बी तुमचा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कॅन्सल पण होऊ शकतो। आणि इट इज व्हेरी सिंपल प्रोसेस। जर तुम्ही दररोजच्या दररोज जर मेंटेन करत असाल तर फक्त एक फॉर्मॅलिटी राहून जाते, बाकी सगळी प्रोसेस सॉफ्टवेअर करून जाते। गेटिंग दिस? सो दिस इज समथिंग अबाउट जीएसटीआर 1, 2 and 3। हे खूप महत्वाचे 3च जीएसटीआर आहेत। त्याच्यानंतर जीएसटीआर 4 आहे, इट इज इन केस ऑफ क्वार्टरली रिटर्न फॉर द टॅक्स पेयर, क्वार्टरली रिटर्न फॉर द टॅक्स पेयर अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम आपण बघितलेली अगोदर। कंपोजिशन स्कीम मध्ये जर तुम्ही येत असाल तर तुम्हाला मंथली रिटर्न भरायची गरज नाहीये, यू कॅन पे रिटर्न्स फॉर द क्वार्टरली बेसिस, and this quarterly basis is the 18th of the month of next quarter। पुढच्या क्वार्टर मधल्या 18 तारखेच्या अगोदर भरायचंय, मीन्स क्वार्टर विल बी ऑफ 3 months। गेटिंग दिस? 3 महिन्याचा एक जेव्हा क्वार्टर होतो, फॉर एक्झाम्पल जानेवारी पासून मार्च पर्यंत एक क्वार्टर असेल तर त्याचं रिटर्न तुम्हाला जीएसटीआर 4 यू हॅव टू पे 18th of April, बिफोर 18th of April you have to pay जीएसटीआर 4। तो जीएसटीआर 4 is for whom? It is for composition taxpayer। कंपोजिशन टॅक्स पेयर काय असतं आपण बघितलेलं आहे। देन जीएसटीआर 5 इज पिरियोडिक रिटर्न फॉर नॉन रेसिडेंट फॉरेन टॅक्स पेयर।
GSTR 5 इज फॉर नॉन रेसिडेंट पीपल, फॉरेन टैक्स पेयर के लिए। और वो कब भरना है, देखिए 7 days फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। 7 days फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ युअर रजिस्ट्रेशन. तुमच्या लास्ट डेचं रजिस्ट्रेशन कधी आहे तिथून पुढे 7 दिवसामध्ये तुम्हाला भरायचंय. और 20th ऑफ द सबसिक्वेंट मंथ आफ्टर द कम्प्लिटेड मंथ. तेवढे महिने कंप्लीट झाल्यानंतर, तेवढ्या महिन्याची जेव्हा तुम्ही परमिशन मिळते, तेवढ्या महिन्याची तुम्हाला इन्कम बिझनेस करण्याची परमिशन मिळते, त्याच्यानंतर तुम्ही 20 तारखेपर्यंत भरणं गरजेचं आहे किंवा 7 दिवसाचे. नेक्स्ट GSTR 6 क्या है? रिटर्न ऑन इनपुट सर्विस प्रोवाइडर. रिटर्न फॉर द इनपुट सर्विस प्रोवाइडर. सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या है? सर्विसेज के लिए है 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. रिटर्न फॉर द इनपुट सर्विस प्रोवाइडर 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. पुढच्या महिन्याच्या सर्व्हिस प्रोव्हायडर साठी आहे मी. हे गुड्स अँड गुड्स साठी नाहीये, ही सर्व्हिस प्रोव्हायडर साठी स्कीम आहे GSTR 6. नाउ दिस इज द 13th डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ. पुढच्या महिन्याच्या 13 तारखेपर्यंत भरायचं. देन GSTR 7 रिटर्न फॉर टॅक्स डिडक्टेड ऍट सोर्स. दिस विल बी फाइल्ड 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. अगर आपका टैक्स TDS कट हो गया रहेगा तो आपके लिए ये GSTR 7 भरना है 10th of the month. Then GSTR 8 is returns filed e-commerce companies, online companies, online जो माल बेचते हैं ना, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल Amazon, फ्लिपकार्ट, उसके बाद क्या है वो मीशो वगैरह वगैरह सब कुछ. ओके, तो उसके लिए क्या है? रिटर्न्स है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ हर साल के. और जो भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो उन ऑनलाइन बिजनेस के लिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना, टैक्स लिमिट, टर्नओवर का लिमिट कितना था? 20 लाख का. तो उनके लिए टर्नओवर का लिमिट नहीं है. अगर इफ दे आर डूइंग द ऑनलाइन बिजनेस, their turnover may be less than 20 lakhs, but they have to register. They must be registered if they are doing the ऑनलाइन बिजनेस. कोई भी होटल इंडस्ट्री की भी ऑनलाइन बिजनेस है, टूर्स एंड ट्रैवल बिजनेस के, उसके बाद मीशो है, उसके बाद हमारा उसके फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये सारे ऑनलाइन, उसके बाद उबर है. सो दीज आर द वेरियस कंपनीज. तो उनको GSTR नंबर लेना कंपलसरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर. टर्नओवर कितना भी होने दो, GSTR नंबर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. देन GSTR 9 इज एनुअल रिटर्न. तो एनुअल रिटर्न कब जाना चाहिए? फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 30th ऑफ दिसंबर के पहले आपका एनुअल रिटर्न जाना चाहिए. जैसे द वे इन विच यू आर फाइलिंग द मंथली रिटर्न, हियर आल्सो यू हैव टू फाइल एनुअल रिटर्न. एंड एनुअल रिटर्न का लास्ट डेट है 30th ऑफ दिसंबर टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. And GSTR 10 is nothing but your final return. It will be 20th of the succeeding month. So these are the periodicity of returns. So there are 10 GSTR forms are available, which you need to understand. Okay, for service companies, service provider companies, as well as for manufacturing companies. So friends, in this way, we have finished this first unit. Sorry, this second unit. Do you have any kind of doubts? You can ask me. Otherwise, to the next lecture, we will start next third unit. Clear, everybody? Have any doubt with respect to this first unit and second unit? Just unmute your mic and tell me. No, sir. No, sir. Then take my mobile number and just drop me message. I will share you PPTs. My number is, just take my number. Should I tell my number? Should I tell? Yes, sir. Write down 73 855 77 945. कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव मुझे मैसेज करिए, मैं आपको मेरा पीपीटी 2 लेक्चर का, 2 सब्जेक्ट, 2 टॉपिक का मैं पीपीटी सेंड करता. देन यू कैन शेयर दिस पीपीटी विथ रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, इन केस ऑफ एनी डाउट्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस first and second unit, you can ask me your doubts. I have also shared my mobile number. Okay, so let us stop here. We have finished 2 units and
I will share you PPT as early as possible. Just drop me message. I am so and so. Just share me PPT. Immediately I will share you PPT. Okay. Thank you so much. Thanks for your time. And see you in the next week. Yes. Thank you, sir. Yeah. Bye. Bye. Bye.